کہ کراچی کی سیاست میں نئی ہلچل۔ تحریک انصاف کا میئر کراچی کے انتخاب کے لیے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان۔ پی ٹی آئی کراچی کے مطابق پیپلز پارٹی میئر کراچی کے انتخابی عمل میں پری پول ریگنگ کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی منتخب بلدیاتی نمائندگان کو سندھ پولیس کے ذریعے اغوا کر رہی ہے۔ جو پیپلز پارٹی 4 بار بلدیاتی انتخاب سے پیچھے بھاگی، وہ اجلت میں میئر کا انتخاب کرانا چاہتی ہے۔ میئر کا انتخاب شفاف طریقے سے ہونا چاہیے۔ میئر کراچی کا انتخاب، تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کو مشکل میں ڈال دیا۔ تحریک انصاف نے میئر کراچی کے الیکشن میں جماعت اسلامی کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ترجمان پی ٹی آئی کراچی کے مطابق پیپلز پارٹی میئر کے انتخابی عمل میں پری پول ریگنگ کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی 4 بار بلدیاتی انتخاب سے پیچھے بھاگی، وہ اجلت میں میئر کا انتخاب کروانا چاہتی ہے۔ بلدیاتی نمائندگان کی حلف برداری سے پہلے ان کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی اس معاملے پر عدالت سے بھی رجوع کر چکی ہے۔ پیپلز پارٹی نے چور دروازے سے میئر کے انتخاب کا راستہ بنایا۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نہیں چاہتے کہ عوامی مینڈیٹ قبول کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے پی ٹی آئی کی حمایت پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ہی الیکشن کمیشن سے بلدیاتی انتخابی شیڈیول آگے بڑھانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ جماعت اسلامی کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اپنے وسائل کے استعمال سے زبردستی اپنا میئر لانا چاہتی ہے، لہٰذا 22 مئی کو حلف برداری اور مخصوص نشستوں پر انتخابات کو فی الحال مؤخر کیا جائے۔ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے منتخب افراد اور آئندہ مخصوص نشستوں کے امیدواران کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ بلدیہ عظمی کراچی میں مخصوص نشستوں کے انتخاب کے بعد ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی کے اراکین کی تعداد 144، جماعت اسلامی کی 127، تحریک انصاف کی 63، مسلم لیگ نون کی 9، جے یو آئی کی 4 ہو جائے گی۔ میئر کراچی کے لیے 179 ووٹ کی سادہ اکثریت کسی کے پاس بھی نہیں۔ پیپلز پارٹی کو جے یو آئی اور نون لیگ کے اتحاد کے بعد بھی کم از کم 22 نشستیں درکار ہوں گی۔ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف اتحاد کر کے بآسانی میئر کا امیدوار لا سکتے ہیں۔ میئر کراچی جیالہ ہی ہوگا، صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا دعویٰ۔ کہتے ہیں ہم نے جماعت اسلامی سے بھی بات کی ہے، میئر پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا۔ سنگل اکثریت ہو، پہلا حق اسی کا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی جماعت اسلامی کو سپورٹ کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ میئر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا بنتا ہے تو بھی ویلکم کہیں گے۔ چاہتے ہیں جماعت اسلامی ہمارے ساتھ بھی بات کرے۔ ہراساں کرنے کے الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ میئر کراچی جیالہ ہی ہوگا۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا دعویٰ، کہتے ہیں ہم نے جماعت اسلامی سے بھی بات کی ہے، میئر پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا۔ چاہتے ہیں ڈپٹی میئر تحریک انصاف کا ہو۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مل کر کام کریں گی۔ چیئرمین تھانے بلائے جا رہے ہیں، ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ چیئرمین کسی طرح پیپلز پارٹی کی حمایت کر دیں۔ ہمارے نمبرز پورے ہو گئے، پی ٹی آئی کا شکر گزار ہوں۔ جماعت اسلامی نے کراچی میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے جو دباؤ ڈالا ہوا ہے وہ ختم کرے۔ چاہتے ہیں کہ ڈپٹی میئر تحریک انصاف کا ہو۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مل کر کام کریں گی۔ وفاقی حکومت نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیشن تشکیل دے دیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ بلوچستان ہائی کورٹ سے نعیم اختر افغان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق بھی کمیشن میں شامل ہیں۔ کمیشن آڈیو لیکس کے معاملے پر تحقیقات کرے گا۔ وفاقی وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ کہتے ہیں ادارے کی ساکھ کو آڈیو لیکس نے متاثر کیا۔ کمیشن قائم کرنا حکومت کا اختیار ہے۔ کمیشن 2017 کے ایکٹ کے تحت بنایا گیا۔ وفاقی حکومت نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیشن تشکیل دے دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق بھی کمیشن میں شامل ہیں۔ کمیشن آڈیو لیکس کے معاملے پر تحقیقات کرے گا۔ وفاقی وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ کہتے ہیں ادارے کی ساکھ کو آڈیو لیکس نے متاثر کیا ہے۔
सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ी मुलाकात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान नम्रता बंदयाल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की अहम मुलाकात हुई। जज साहिबान के दरमियान मुलाकात 3 घंटे से ज़ायद जारी रही। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुलाकात में मौजूद नहीं थे। मुलाकात में ज़ेर समात मुकदमात समेत दीगर कानूनी और आईनी उमूर पर बात हुई है। यह अहम मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान नम्रता बंदयाल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की यह अहम मुलाकात हुई। जज साहिबान के दरमियान मुलाकात 3 घंटे से ज़ायद जारी रही। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुलाकात में मौजूद नहीं थे। मुलाकात में ज़ेर समात मुकदमात समेत दीगर कानूनी और आईनी उमूर पर बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट में ये अहम और बड़ी मुलाकात हुई। जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह पर पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। रिहाइशगाह के दाखिली और खारजी मकामात पर पुलिस के एहलकार तैनात हैं। साबिक वज़ीर आज़म को कवानीन के तहत मिलने वाली सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। पुलिस एहलकार मुख्तलिफ शिफ्टों में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह पर पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं तालिब फरीदी से। तालिब, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, इस वक्त जो है जमान पार्क के इर्द गिर्द के इलाकों की ना सिर्फ सफाई कर दी गई है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का अमला था उसने जो ग्रीन बेल्ट थी उसको बहाल कर दिया है। इस वक्त जो एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो कवानीन के तहत सिक्योरिटी हासिल है वो फराहम कर दी गई है। वो जो सिक्योरिटी एहलकार है वो इमरान खान के घर के बाहर दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात हैं, जो 24 घंटे जो है 8-8 घंटे की शिफ्टों में जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। बाकी जो जमान पार्क के मामला थे बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया गया है। जो कैंप थे वहाँ पे जो होर्डिंग लगे हुए थे, जो बैनर लगे हुए थे, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अमले ने उनको उतार के और जो ग्रीन बेल्ट थी एरिया को जो है बहाल कर दिया है। जी सही तालिब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुल्क भर में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए कार और बाइक रैली निकाली गई। मुल्तान में वासा और पाकपतन में एपका मुलाजमीन ने रैली निकाली। मुल्क भर में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकालने का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए कार और बाइक रैली निकाली गई। लेवीज लाइन से शुरू होने वाली रैली में शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिनमें पाक अफवाज के हक में नारे दर्ज थे। शुरका का कहना था 9 मई को स्याह दिन के तौर पे याद रखा जाएगा। मुल्तान में वासा के ज़ेर एहतमाम पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली में शुरका ने पाक अफवाज के हक में भरपूर नारेबाजी भी की। पाक पतन में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए एपका मुलाजमीन ने रैली निकाली। रैली में एपका मुलाजमीन के साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। शुरका ने सानिया 9 मई की मजम्मत करते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। कम से कम 4 नशिस्तों पर कब्जा किया है, जिसमें आरओ के जरिए भी बदलवाया है और धांधली भी की है, जाली वोटिंग करवाई है और हर चीज हमने बिल्कुल 2-2-4 की तरह इलेक्शन कमीशन में जमा भी करवा दी है। वो नहीं मानेंगे तो अदालत जाएंगे। तो इसलिए ये सब कुछ करने के बाद भी जब नंबर पूरे नहीं हुए तो अब तस्लीम कर लें। वो तस्लीम करेंगे तो हमें भी किसी को पत्थर नहीं मारना, गोली नहीं चलानी। इसी शहर में रहना है, इसी सूबे में रहना है, इसी मुल्क में रहना है। तो तस्लीम करो और कंट्रीब्यूशन करो किसी अच्छे काम में। हुकूमत की ताकत को आवाम की भलाई के लिए लगाओ, लोगों का रास्ता रोकने के लिए नहीं लगाओ। इसलिए नहीं लगाओ कि तुम कब्जा करके मैंडेट हासिल करो। और अब ऐसा हम नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अपने इस मैंडेट के तहफ्फुज़ के लिए आइंदा का लल भी तय करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मैं पूरी कराची के अवाम को खास तौर पर मुबारकबाद देता हूं कि चीजें अपनी सही डायरेक्शन में जा रही हैं। बड़ा सब्र आजमा ये काम है, जिद्दोजहद तवील तर है, लेकिन जिद्दोजहद के नतीजे में ही रास्ते खुलते हैं।
मायूस हो जाने से रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर कोई पूछने वाला भी नहीं होता। इसलिए जमात इस्लामी हर तरह के हालात को फेस कर रही है और इंशाअल्लाह आवाम ने जो मैंडेट हमें दिया है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी और उसके मुताबिक इंशाअल्लाह डेवलपमेंट भी करेंगे। लोग हमसे सवाल करते हैं और हो सकता है कि आपके सवाल आज भी मौजूद हों कि इन हालात में अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो फंड्स कैसे आएंगे, फलां कैसे होगा। मैं एक मरतबा फिर यह कहना चाहता हूं कि हमारा कराची के अवाम से ये वादा था इलेक्शन से पहले भी कि अपने इख्तियार से ज़्यादा काम करेंगे और बाकी इख्तियार, कानूनी इख्तियार, आईनी इख्तियार छीन कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपना काम पूरा करेंगे, रोएंगे नहीं, जिद्दोजहद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। आइन की आर्टिकल 140A के मुताबिक तमाम इंतजामी, सियासी और मालियाती इख्तियारात मुंतकिल होने चाहिए बल्दियाती हुकूमतों को, और वो बल्दियाती हुकूमत चाहे कराची की हो, हैदराबाद की हो, लाड़काना की हो, जैकबाबाद की हो। सिंध के अवाम का यह हक है कि बल्दियाती इदारों को एम्पावर किया जाए। आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक है। तो उसके लिए हमारे पास आईनी और कानूनी रास्ता भी है। वेलकम बैक। जब हमारे जवान बॉर्डर पर शहीद हो रहे थे तो नवाज शरीफ मोदी को बगैर वीजे के घर बुलाकर खाने खिला रहे थे। पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि हम डॉन लीग्स को भूल जाएं। अवाम और फौज को लड़ाने का एजेंडा नवाज शरीफ और मोदी का है। परवेज इलाही की जानिब से ये कहा गया। पंजाब की नालायक हुकूमत ने इतना शोर मचाया हुआ था कि जमान पार्क में दहशतगर्द मौजूद हैं। अवाम और फौज को लड़ाने का एजेंडा नवाज शरीफ और मोदी का है। पंजाब की नालायक हुकूमत ने शोर मचाया हुआ था कि जमान पार्क में दहशतगर्द मौजूद हैं। परवेज इलाही की जानिब से ये मजीद कहा गया कि इंटरनेशनल मीडिया की मौजूदगी में ये जाली कार्रवाई डालने में नाकाम रहे। इमरान खान ने अपने दौर में पाक फौज और दिफा पाकिस्तान को मजीद मजबूत बनाया। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये कहा गया कि जब हमारे जवान शहीद हो रहे थे तो नवाज शरीफ मोदी को बगैर वीजा घर बुलाकर खाने खिला रहे थे। परवेज इलाही की जानिब से ये पूछा गया कि क्या हम डॉन लीग्स को भूल जाएं। वेलकम बैक। पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स के 11,27,000 नादहिंदगान को खुसूसी रियायत दिए जाने का इंतजाम डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन ने स्पेशल ऑडिट और इंक्वायरीज में एक्साइज अमले की नाअहली का सुराग लगा लिया। महकमा एक्साइज के अमले ने मुबैना मिली भगत और गफलत के तहत नादहिंदगान को टैक्स अदायगी के नोटिस इरसाल नहीं किए थे। डीजी एक्साइज ने क्रैकडाउन के बाद गुज़श्ता 15 दिन में 2 लाख से ज़ायद नादहिंदगान को नोटिस जारी कर दिए। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमतों में ₹1.55 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। इजाफा मई, जून और जुलाई के बिलों में वसूल किया जाएगा। इजाफे का इत्तलाक लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। कराची के शहरियों के लिए ये बुरी खबर है। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।